आज जागे भाग हम मिलकर तराने गा रहे, कर रहे हैं स्वागतम, स्वर के सुमन बरसा रहे। नमस्कार, सुप्रभात। मैं दीक्षा कोहली आज के इस खास अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। A very good morning to my respected guests and everyone present here. A warm greetings on International Women's Day. I am Bhavna Gulati Nair. Whenever women has led, we have seen positive results. This year, women of the world want and deserve an equal future, free from stigma, stereotypes and violence. A future that's sustainable, peaceful with equal rights and opportunities for all. आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मौजूद माननीय सांसदगण, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारी और कर्मचारी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो हर दिन महिला के नाम है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। एंड इट्स वेरी वेल सेड दैट इफ मैन इज एजुकेटेड, ही एजुकेट्स जस्ट वन पर्सन, बट इफ अ वुमन इज एजुकेटेड, शी एजुकेट्स होल फैमिली, होल सोसाइटी. That's the power of women. That's the persona of women, that she is loved by everyone, and that's the power of women, that she can rule the world. महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। यह थीम कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस ईयर्स थीम, let's all choose to challenge. We can all choose to seek out and celebrate women's achievements. The reality is women are still underrepresented in public life and decision making. On the occasion of celebrating International Women's Day, the first of its kind initiative is organized under the guidance of Honorable Lok Sabha Speaker Om Birla. जी हाँ, ये अपने आप में पहली बार किया गया एक ऐसा प्रयास है जो बहुत खास है। प्राइड और लोकसभा सचिवालय के सफल प्रयास से महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 8 से लेकर 12 मार्च पर गहन अध्ययन किया जाएगा पैनल डिस्कशन के माध्यम से। महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने की दिशा में इस कार्यक्रम में महिला आरक्षण बिल, संपत्ति विरासत, घरेलू हिंसा, खेलों में रुचि, सोशल मीडिया और गोपनीयता जैसे मुद्दों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। Absolutely right, Diksha. On that note, may I now invite the Honorable Joint Secretary of Lok Sabha Secretariat, Prasanjit Singh Ji, to deliver the keynote address at this celebration of our prodigal women. Thank you. Very good morning to all of you. And I am extremely, on behalf of the Honorable Speaker and the Pride, Team Pride, I take this privilege to extend a very warm welcome to the Honorable Members of the Parliament and the honorable members of the legislative assemblies all over the country who are joining us online. And we are extremely thankful to our panel discussion, our respected Madam Priyanka Chaturvedi ji and Madam Sangeeta Kumar Singh Dev ji. We are extremely thankful. And Professor Rita Bahuguna Madam will be joining us soon for the panel discussion. And so, Madam, we wanted to share with this that this is the first time that this program has been organized on the unique initiative of the Honorable Speaker, and he has taken that this day should be celebrated with a week-long celebrations to highlight the various issues which have been plaguing the society and especially related to women. And I am sure that in this weeks-long program, a lot of deliberations and discussions will bringing us a lot of important issues which needs to be considered by the lawmakers. And with this, I extend again a very warm welcome and thank you, ma'am, for coming. Thank you so much. Thank you so much, Prasanjit ji.
सच में अगर महिला को घर पे ही सम्मान मिले तो उसे बाहर सम्मान करने की बात नहीं, वो सम्मान का प्रश्न बाहर जाकर नहीं उठाएगी। अगर आप घर में अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ को वो इज्जत देते हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं के सम्मान का ये मुद्दा बाहर आएगा ही नहीं। क्यों भावना? Absolutely right, Diksha. Let's now start with the first session of the day. Today, we would be discussing on Women Reservation Bill. Why are we missing the target of 33%? Women are the integral and indispensable part of the society. Without empowerment of women, there can be no empowerment of the society. Be it political empowerment of women or social or even economic, the path towards that empowerment has to be traversed through society. Political empowerment of women can be achieved through myriad of means. कहते हैं नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। लेकिन एक बात ये भी है कि नारी से ही है संसार, नारी से ही है सारा आधार। नारी है बराबरी की हकदार। फिर क्यों आज तक संसद में पेंडिंग वो बिल है जिसमें है 33% आरक्षण की दरकार। The Parliament has set a new record with 103 women MPs in House, 78 elected women MPs in Lok Sabha, the highest number since 1952, and 25 in Rajya Sabha. But still, the participation of women in politics is still very low. Today's topic would definitely shed light on the need of the hour. To participate in this discussion, we have an eminent panel. We have MP from Rajya Sabha, Srimati Priyanka Chaturvedi ji, MP from Lok Sabha, Srimati Sangeeta Kumar Deo ji, and Lok Sabha MP, and we will be having Professor Rita Bahuguna Joshi in a short while. And we have our eminent members of parliament here as well. I thank you everybody for joining the session. Now I would like Sangeeta ji to throw a light on this topic and enlighten us. Sabko namaskar. First of all, I want to thank you all for inviting me for this discussion. And I want to wish all the women globally a very happy International Women's Day. I think today is the day that we have to celebrate women, honor them, recognize their achievements, whether they are, entrepreneurs, whether they are politicians, whether they are representing startups, SAG groups, Anganwadi workers, Asha Maas, सबको बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ. And at the very outset, I would like to say that women, whenever provided with opportunities, have, tended to prove themselves and excelled in their various fields. And I would definitely like to thank the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. During his government, the narrative has shifted from women's empowerment to women-led development. And a lot is being done for women. And he's a sensitive statesman, and he has really reached out to improve the lives of thousands and lakhs of women in India. And he's brought in various schemes for women right from the birth of a girl child to the time of a marriage, or even if she wants to start a business. And one, I would say, Yojana of his, the Pradhan Mantri Mudra Yojana, the scale of the Yojana, the reach of the Yojana, and the, manner in which it has uplifted the financial status of women. As you rightly said, that political, social, and economic independence is very important. So when a woman is financially independent, then, she is in a different league altogether. So I would like to thank the Modi government for all the reforms and schemes they have brought in. Now to come to the bill, I would say during the drafting of the Indian Constitution, at that time itself, the women's, reservation talk was going on. But there were discerning, there were, two different schools of thought, some which were for the reservation of women and some who were not for it. But now it is 75 years since our country has been independent.
And it is a sad situation that, till today, we have not been able to pass the women's reservation bill, even though it has come up in the Lok Sabha 4 times. That is from in 1996, 2008, 2007, 1996, 98, 99, 2008. And even after 25 years, if we are still debating whether the, women's reservation bill should be passed in Parliament or not, then my request to everybody is that I think it is high time. Now, the representation of women in the first Lok Sabha was 4.5%. And after 75 years, if we have only been able to come up to 14%, that is 9% in the last 70 years, then that doesn't speak very well. According to the report of the Inter-Parliamentary Union, India ranks 149th out of 193 countries where women's representation is concerned. And it is not only lagging behind countries like UK, USA, France, but even our neighbors, Nepal, Bangladesh, Pakistan, China. So I think, something ought to be done about it. And also in India itself, there are states like Tripura, Nagaland, Arunachal, Jammu Kashmir, Himachal, which has, these states have never sent women MPs. And Nagaland has not even had a woman MLA. So we really need to think about, the empowerment of women and inclusion of women in politics in a more comprehensive way. And as the popular saying goes, कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है. So if anybody, I feel, can bring about this women's reservation bill, it is indeed Prime Minister Narendra Modi ji. Now, the 17th Lok Sabha, as you rightly pointed out, has the maximum number of women MPs, if you include Lok Sabha and Rajya Sabha. And we have done rather well. But there is a lot which needs to be done further. And, globally, if you go into the statistics, there are places where almost 50% of the legislators or parliamentarians are women. And I think women work twice as hard as a man to prove their worth, And they try to put in their best effort to make it a success story. And hence, we must take this role of bringing in women into the mainstream of political life more strongly. And here I would like to say that, feminism isn't about making women stronger. When we talk about women empowerment, a lot of people say that, oh, this is, the same old feminism. No, feminism is not about making women stronger. Women already are strong. Feminism is about changing the way the world perceives that strength of women. And I think now the time is right. There have been so many firsts in Prime Minister Modi's bag of achievements. He's brought in such big bang reforms. And I'm sure this would be just, another day's work for him. And in that context, I would like to thank everybody for their cooperation and for inviting me. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. आपने जिस तरह से प्रकाश डाला, सच में हम कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्गर हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर. हमें विमेन एम्पावरमेंट की बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. और आपकी बात सुनकर यही लगता है कि मौका जब भी मिला है नारी को, नारी ने रचा है इतिहास. मौका जब भी मिला है नारी को, नारी ने रचा है इतिहास. सफल कहानियों की फेरिस्त बड़ी लंबी है, क्योंकि बड़े खास है नारी के प्रयास. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और इसी के साथ मैं बहुत स्वागत करती हूँ इलाहाबाद से हमारे साथ हमारी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद हैं. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू. सेम टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत शुभ हो हम सबको. बहुत धन्यवाद मैम.
अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी से कि वो आज की जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन बिल, आज तक ये क्यों अटका है, इतने सालों के बाद, इतनी सरकारों के पास होके फिर रीइंट्रोड्यूस होके आज तक ये क्यों लंबित है, इस पर पहले प्रकाश डालें और ये भी बताएं हमें कि इक्वालिटी होने के बावजूद क्यों विमेन को रिजर्वेशन की जरूरत है, पार्लियामेंट में भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राइड को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने हम सबको एकत्रित किया और इस विषय पर, जो कि वास्तव में संवेदनशील भी है और बहुत समसामयिक है, उस पर आपने हमें चर्चा के लिए यहाँ आमंत्रित किया और बहुत जबरदस्त पैनल भी है आपके पास। मैंने इससे पहले बोलने की गुजारिश की थी क्योंकि मुझे अभी कई सारे वेबिनार्स पे ज्वाइन करना है। बहुत अच्छी बातें आ गई, जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आए मैं उनसे अपने आप को जोड़ती हूँ, उन बातों से जोड़ती हूँ, तो इसलिए मैं वो बातें बोलना चाहूंगी जो मैंने सुनी नहीं है अभी यहाँ पर आके पैनलिस्ट से। वास्तव में एम्पावरमेंट है क्या, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि हमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सशक्तिकरण मिले। अब ये सशक्तिकरण कैसे मिलता है? ये उन विधाओं से मिलता है, उन प्रोसेसेस से मिलता है जो प्रोसेसेस हमको समाज देता है या राजनीतिक व्यवस्था देती है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमें हमारे पार्लियामेंट ने बराबरी का अधिकार दिया है कि कोई लिंग भेद नहीं होगा, सब सामान्य होंगे, सामान्य अपॉर्चुनिटीज होंगी, आगे बढ़ने का हक होगा। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ हमको एक कह लीजिए एशियाई सामाजिक व्यवस्था में हमारा जन्म हुआ। एंड ऑल एशियाटिक पीपल आर पैटर्नल सोसाइटीज। हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं, वो चाहे आपका चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे हम खुद भारत क्यों ना हो, साउथ एशिया के कंट्रीज क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं ये सोशल बैरियर्स हमें रहते हैं, जिसको हम लोग माइंडसेट बोलते हैं। तो हजारों साल का जो माइंडसेट है वो जल्दी बदलने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक द वर्ल्ड हैज टेकन स्ट्राइड्स। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो महिला आंदोलन कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। पहला महिला दिवस 1908 में हुआ और तब से लेकर 1975 लग गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषित होने में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। मैं उस पहले मीटिंग में थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय विद्यानंदन बहुगुणा में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया था और मैंने सुना कि आज महिलाओं की मीटिंग होने वाली है। इट वॉज एब्सोल्युटली न्यू कॉन्सेप्ट। अरे भाई, महिलाओं की मीटिंग, हमने तो सुना था कमरों के अंदर होती है। बोले नहीं, बेगम हजरत महल पार्क में होगी। और हम वहां पहुंचे तो समझ लो 10,000 से ज्यादा महिलाएं और हर युग की, हर तरह की महिलाएं। आई वॉज फीलिंग एम्पावर्ड दैट वेरी डे। एक तो बेगम हजरत महल का पार्क, ऊपर से 10,000 महिलाएं और मैं 20 साल की। मुझे लगा नहीं, हमारा भी वजूद है। यस, वी डू एग्जिस्ट, वी हैव दैट पावर दैट वी कैन कम टुगेदर एंड चेंज थिंग्स। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट जो है समाज भी देता है और राजनीतिक व्यवस्था भी देती है। अभी मैं पढ़ रही थी, आज वो कल जब ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, महिला दिवस, तो यूनाइटेड नेशंस की जो हमारी वुमेन सेक्रेटरी हैं, उनका भाषण आ रहा था। तो उन्होंने साफ कहा कि डिसाइसिव एक्शन लेने का समय है। अब हम लोगों को बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, साहसी कदम उठाने पड़ेंगे। और उसका वो बयान करते हुए उन्होंने कहा कि अब सरकारों को चाहिए कि वे जो कोटा है उसको कंपल्सरीली लागू करें, कोटे को लाएं। क्यों कहा गया कि रिजर्वेशन में कोटा लाया जाए? और आपने स्मृति ईरानी जी का तो कल पढ़ा ही है कि वी आर नॉट प्लीडर्स बट वी आर लीडर्स। हो गया बहुत प्लीड करने का, क्योंकि जब आपने जो हमको बैकग्राउंड पेपर भेजा था उसमें रेणुका रॉय जी का जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण दे रही थी, तो जब वहां आया कि क्या महिलाओं को रिजर्वेशन दें, तो उनके मुख से निकला दैट विल बी इंसल्टिंग आवर इंटेलिजेंस। हमारी विद्वता को आप बेइज्जत कर रहे हो। उन्होंने उस समय कहा, सरोजनी नायडू की बात करी उन्होंने उस समय, और रानी लक्ष्मीबाई की और बड़े बड़े लोगों की बात करी। लेकिन मैं ये भूल गई उस समय कि करोड़ों करोड़ों महिलाएं अभी भी बहुत ही मतलब एक बंदिश का जीवन जी रही हैं। तो ये जो उसी के चलते आप देखिए सरकारों ने अलग अलग अपने काम किए। लीडर्स तो भारत ही था। 1992 में जब हमने 73वां संशोधन दिया और यूनानिमसली वो पास हुआ सदन में, पार्लियामेंट में सारे दलों ने मिलकर पास किया, वो टर्निंग पॉइंट था महिलाओं का। और आप खुद सोच लीजिए कि आज 45%
स्थानीय निकाय के जो पद हैं वो महिलाएं सुशोभित कर रही हैं. They are holding those positions of command. But how? Because they worked hard. और जब वोटर उनकी कुल महिलाएं तो नहीं थी, there was no women's constituency, it was a general constituency, जहां से वो लड़ी, तो पुरुष भी सपोर्ट करते हैं कानून बनाने में, पुरुष भी सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे कामों को, इसीलिए स्थानीय निकाय में विमेन हैव बिकम गेम चेंजर्स. प्रधानपति होगा, प्रधानपति होता हम लोग सुनते आए, लेकिन आज मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि जब मैं गांव में जाती हूँ तो 70% लड़कियां या प्रधान खुद अपने संचालन कर रही हैं, बैठती हैं, माइक पे बोलती हैं, एम्पावर्ड फील करती हैं. तो ये जो प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट है, ये माँ से बेटी को, बेटी से बेटी को भी मिलता है, समाज से हमको मिलता है. तो ये एम्पावरमेंट प्रोसेस वहां से शुरू है. और जब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, व्हाई डू वी फॉरगेट द लोकल गवर्नमेंट्स? वी शुड नॉट फॉरगेट देम. दे आर वेरी स्ट्रांग बॉडीज एंड दे आर द ग्रासरूट्स गवर्नर्स for our entire social sector and for our development processes. तो उसको छोड़ना नहीं है. अब आ जाता है लेजिस्लेचर्स का. कानून तो वहां बनते हैं. तो हम महिलाओं का कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 सदस्यों ने ये कहा वहां पर उस समय कि भाई अगर महिलाएं पुरुष से compete करेंगी तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी. संस्कृति नहीं, हम सिविलाइजेशन, सभ्यता नष्ट हो जाएगी. So it will destroy, if the women start competing with men, our civilization will be destroyed. एक ने कहा, women think they work from the heart, not from the mind. But sir, we have both. We have both because we use our heart and mind both when it comes to tackling situations. Look at the COVID period. Who was handling the COVID period? It was the Ashas at the rural level who were going door to door, disseminating information, keeping a track of those who were coming from outside. There were those teachers who were who are now going for vaccination from door to door. So these are the people, the women at the grassroots, the SHG groups. Look at this स्वयं सहायता समूह जो हमारे गांव में है. क्या जबरदस्त काम कोविड के दौरान उन्होंने किया है. तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को विलेज लेवल पे जिंदा रखा है. तो ये सब ही लीडरशिप है. लीडरशिप सिर्फ एमएलए एमपी बनने से नहीं आती है. लीडरशिप सोसाइटी के इश्यूज को स्वयं ग्रहण करने से भी आती है. तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लीडरशिप. यस, बट द टॉपिक टुडे इज रिजर्वेशन. नाउ व्हाई आर वी सीकिंग रिजर्वेशन? बिकॉज यू सी वी आर सीकिंग रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स. वुमेन आर सीकिंग बिकॉज हमने सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने कहा था कि हम लोग महिलाओं का ध्यान रखेंगे, उनके वेलफेयर का ध्यान रखेंगे. तो 75 में जब पहली बार विमेन स्टेटस रिपोर्ट बनी विमेन की, तो उसमें आया कि विमेन की तो हर जगह स्टेटस गिरता चला जा रहा है. फिर 1989 में रिमेंबर देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन आफ्टर 30 years ऑफ द हैपनिंग ऑफ 75-25 years. फिर भी आया कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. एंड इवन टुडे आई वुड से देयर इज अ वेरी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट. व्हाई? Because we are not properly represented in bodies, in decision making bodies. जो जहां पर निर्णय होते हैं, कहाँ होते हैं? ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे होते हैं. कहाँ होते हैं? जुडिशरी के लेवल पे होते हैं. कहाँ होते हैं? लेजिस्लेचर्स में होते हैं. कानून बनता है विधानसभा में, कानून बनता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में. लेकिन इनमें हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है? अगर भारत का रिप्रेजेंटेशन देखें तभी आपको फिगर आई. वो फिगर बिल्कुल सही है. 4.5 से हम 14.6 तक पहुंचे हैं. यानी 70 साल लग गया हमको 7 पॉइंट ऊपर बढ़ने में. तो हम कितना बढ़ पाएंगे? आपके नीचे देखिए तो लेजिस्लेचर्स में 4% भी महिलाएं एमएलएज नहीं है भारतवर्ष में. तो इस तरह से ये. अब आप जुडिशरी में आ जाइए. जुडिशरी का देख लीजिए आप. न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज? 31. कितनी महिलाएं? 2. हाई कोर्ट में कितने जजेस भारतवर्ष में? 1100 के करीब. महिलाएं कितनी? 83. अब ये तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं. आईएएस में थोड़ी बेटर फिगर है इंडिया की. ग्लोबली देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेट्स में वी आर अ लिटिल बेटर, बट इन पुलिस वी आर स्टिल वेरी लो. वी अबाउट 10, बिलो 10%. इन आईएएस आईपीएस वी मे हैव गॉन अ बिट ओवर. लेकिन हाँ, जर्नलिज्म में और हमारे क्या बोलते हैं एजुकेशन में, इन सब में हम लोगों का बहुत अच्छा स्टेटस बढ़ रहा है. बट नाउ वेयर इज द एक्शन टेकन, रिपोर्ट टेकन? Laws are formed and watched. This is the place where we come into the legislatures.
If we do not have enough representation in the Vidhan Sabhas and the Lok Sabha or the Parliament, then obviously we cannot become watchdogs of the interests of women. So you need that whole, group of women who can stand up and talk about the problems of the women in this country, the hurdles, the obstacles, and how to overcome them. That is why we are seeking this. And as she correctly said, see what happened. So many times, the bill came, 96, 98, 99, 2008. What was happening? They were being torn up. What was happening? People were giving very, very, objectionable statements outside for women. Somebody's calling them parkati, somebody's calling them something, These kinds of, comments were coming. Derogatory comments were coming, which were hurting us, which were hurting all of us. फिर उसके बाद आप देखिए कि अटल बिहारी जी ने 2 बार प्रयास किया, 2 बार, और कितने दुखी थे जब उन्होंने 2004 में अपना वक्तव्य दिया, जब जा रहे समाप्त हो रहा था उनका कार्यकाल, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा थी कि एक बिल पास हो, परंतु कांग्रेस ने अब विपक्ष पास नहीं होने दिया, उनका ये कहना था. So the question is not Congress or BJP or anybody. We have people who want the bill, we have people who don't want the bill, and they're in every party. This is what I feel. अच्छा, गलत भी नहीं है. प्रियंका जी भी जानती, प्रियंका जी सच बोलिएगा, कौन पावर शेयर करना चाहता है? अगर आज इसी रूम में कहा जाए कि तुम कुर्सी छोड़ दो, दूसरा बैठेगा, तो अभी हम दोनों भी तन जाएंगे ना. इट इज ये जो लड़ाई चल रही है ना, संघर्ष, ये सिर्फ पुरुष नारी का संघर्ष नहीं है, ये सत्ता में आने का संघर्ष है. कौन सत्ता में बैठेगा? सत्ता में तो किसी पावर नोज नो, कहते हैं किंगशिप नोज नो किनशिप. भाई राजा क्यों मार देते थे अपने भाई भतीजों को? इसीलिए मार देते थे कि ऐसा न हो कि कल ये गद्दी मांग ले. तो दैट इज एक्चुअली दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एंड द गवर्नमेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल ऑन इन कंसेंसस. बट जैसे कहा, अगर पॉलिटिकल विल होगी तो ये जरूर पास होगा, और पॉलिटिकल विल है. अगर पॉलिटिकल विल नहीं होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप अगर पढ़ लीजिए, इट इज टोटली विमेन सेंट्रिक, राइट फ्रॉम द गर्ल चाइल्ड to an adolescent to a woman. How to progress, how to bring STEM, those stereotype subjects में से निकाल के कैसे लड़कियों को साइंस में, टेक्नोलॉजी में जगह जगह डाला जाए. कैसे आज the fighter planes are being given to women. How the permanent commission in the army, all 10 branches have been opened up for women. See, these are to strengthen them, to make them strong. And we feel that even the MSMEs, we find that the government is promoting women. All the banks have been asked to seek women entrepreneurs and to give them loans without any collaterals. ये कहाँ जा रहा है? और आपने भी देखा कि किस तरह से women को जो मुद्रा लोन है, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी women हो गई. 75% loan to women, and they're paying back also. See, women are very honest. If they work hard. If they take loans, they give back. We don't run away with money. Without any comment. We never run away with money. So हम बहुत sincere हैं, क्योंकि हमको बचपन से हम मातृत्व होता है हमें. हम बच्चे को पालते हैं, घर को पालते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं. तो हम एक आध हो सकता है अपभ्रंश निकल जाए, कुछ गलत लोग निकल जाए, but majority में women is sincere because she really works from the heart, but she uses her brains also when it comes to crises. So मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे हमारा economic empowerment हो, चाहे हमारा सोशल एम्पावरमेंट हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना बड़ा इम्पैक्ट मेरे स्टेट में हुआ है, यूपी में सब जगह. मैं अपना यूपी का बता देती हूँ कि 2011 में हमारा जो सेक्स रेशियो था यूपी में, मेल फीमेल सेक्स रेशियो, इट वाज 916 to 1000. नाउ इट इज 970 to 1000. 970 पे बैठे हम. इवन हरियाणा इज 932 from 789. 880 या 90 से वो आकर 932 पे बैठा है. तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही तो कमाल है. निर्भया फंड, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन. आज पिंक बसेस चल रही हैं, पिंक वैन्स चल रही हैं, पिंक बूथ्स बन रहे हैं, पिंक टॉयलेट्स बन रहे हैं. सो ये CCTV कैमरास लग रहे हैं. तो विमेन सिक्योरिटी, विमेन्स एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, दिस इज ऑल इन द स्टील. एंड इवन दीज पद्मास, जो पद्मा अवार्ड दिए गए,
मैं तो सोचती हूँ हम लोग तो जानते थे पद्मा अवार्ड मिलेगा, अच्छा इसमें महिला बहुत अच्छी इसको मिल जाए, लेकिन अब मिल रहा उस महिला को जिसको बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, लेकिन ग्राम स्तर पर वो वहां पर लोगों के जीवन को बदल रही है। और प्रधानमंत्री ने ये नियम बनाया कि भाई जो अनसीन है, जो दिख नहीं रहे हैं, उनको भी तो लाओ। अच्छा अब सच बताइए, हम सब यहाँ सांसद बैठे हैं, जब हम उनकी प्रोफाइल पढ़ते ना तो कभी कभी लगता है यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें कुछ और करना चाहिए, बिकॉज यू सी दे आर चेंजिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। सो और हर अपना जो उनका जो मन की बात होती है उसमें लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को संबोधित करना या उनके केसेस को बाहर लाने को कभी नहीं चूकते। स्पोर्ट्स में खेल इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सब में विमेन सेंट्रिक है, योगा, विमेन आगे। तो मेरा यही कहना है, there is a political will which is very evident in other fields, and I'm extremely confident that this government will certainly, at the right time, give the nation what it requires, and that is reservation in legislatures and in the parliament. With this, I would like to end because I think there are so many other panelists, and I did not want to repeat what was said because it was really all good statistics over there. I just tried to bring in a little understanding of the subject. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सच में बहुत पावरफुल था। और हम ये कहते हैं कि जब महिलाएं कुछ भी करने की ठान लेती हैं तो वो करके ही रहती हैं। ये तो 33% की बात है और मुझे लगता है कि अब महिलाओं के मुद्दों पर सिर्फ बात ना हो, अब सिर्फ वाद विवाद ना हो, अब फैसला हो। और जब महिलाएं खुद ठान लेंगी कि हम फैसला लेकर रहेंगी तो वो दुर्गा है, वो शक्ति है, उनके आगे कोई नहीं आ सकता। और एक बहुत ही अच्छा सवाल भी है, व्हाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज लीड द वर्ल्ड व्हेन women is the creator? Can you ever expect the world without her? The answer is with you. No, you cannot. महिला के बिना आप इस दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो ही इस दुनिया का निर्माण करती है। तो फिर जब वो दुर्गा काली का रूप धारण कर ले तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये तो सिर्फ 33% आरक्षण की बात है। Absolutely right, Diksha. Women's Day should not be just restricted to one day, Today Day. It should be a revolution and we should celebrate Women's Day, women issues every day. The solutions should not be just restricted to dialogue. The real implementation of legislations should come out so that the gender-based reservation or gender equality is seen everywhere. Now I would request Honorable Member of Parliament from Rajya Sabha, Srimati Priyanka Chaturvedi ji, to speak on this issue. आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये पहल की है प्राइड की, और उस प्राइड के अंतर्गत उन्होंने महिलाओं को के लिए एक हफ्ते ये पूरा कार्यक्रम रखा है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। डॉक्टर सीमा कौल जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रसन्नजीत सिंह जी, शायद वो चले गए हैं, इकलौते मेल पैनलिस्ट थे अभी। बहुत कम समय होता है कि हम सिर्फ महिला डोमिनेट कर रही होती हैं, तो वील टेक प्राइड इन दैट। एंड ऑफ कोर्स टीम प्राइड को बहुत बहुत आभार एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस इन द टाइम्स टू कम। संगीता देव जी और रीता बहुगुणा जोशी जी, दोनों ने बहुत ही अच्छा पार्टी के से ऊपर उठकर उन्होंने पक्ष रखा, महिलाओं को लेकर पक्ष रखा। और मैं मानती हूं कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है और महिलाओं को राजनीति में और सक्षम के साथ साथ उनको इन्वॉल्व करना है, तो हमें अपनी राजनीतियों से ऊपर उठकर महिलाओं को लेकर जेंडर विशेष बनाकर हमें ये पहल करनी होगी। और ये पहल मैं मानती हूँ बहुत सराहनीय है। ये यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे शुरू किया था, और क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल मंच पे यूनाइटेड नेशंस बात करता है, पर आज तक कोई भी सेक्रेटरी जनरल महिला नहीं बनी है। उसको कौन चैलेंज कर रहा है? एक 34 वर्षीय इंडियन कैनेडियन जो कह रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं सेक्रेटरी जनरल बनूंगी। तो हमारी देश की महिलाएं हैं और देश से पली बड़ी और आगे बढ़ने वाली महिलाएं हैं जो स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रही हैं, और इसके लिए हम सबको एक गर्व महसूस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे गए कि क्यों 33% रिजर्वेशन रियलिटी नहीं है। मैं अभी संसद में बोलकर आई हूं कि 24 साल पहले हमने ये 33% की बात शुरू की, 24 साल बाद भी 33% नहीं मिला है। मैं तो 50% की मांग कर आई हूं। जब हम आधी आबादी हैं तो हमें आधा हक और आधा प्रतिनिधित्व
हमारे संसद में ही नहीं, हमारे सदनों में भी होना चाहिए। वही मांग अभी कर आई हूं। मैं मानती हूं जब हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को संसद में नहीं ला पाते हैं। 14% हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर दुख की बात है कि हम अभी भी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन में बाकी देशों से बहुत पीछे हैं। और ये क्यों होता है? 3 स्तरों को मैं 3 एस पे मैं ध्यान देना चाहूंगी, और वो 3 एस ये हैं: हमारा समाज, हमारी संगठन जो राजनीतिक संगठन है, और तीसरा संसद और सदन में हमारी भागीदारी। हमारा समाज हमें शुरू से ही, पहले तो जब हम ऋग्वेद की आपने बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया कि महिलाओं को 50% रिप्रेजेंटेशन करता था। अगर एक पुरुष है, महिला के बगैर वो कंप्लीट नहीं है, और अगर एक महिला है वो पुरुष के बगैर कंप्लीट नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, इसमें बहुत चर्चा हुई कि क्या महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, पर ये कहा गया और ये मान्यता थी कि जब हम इक्वल राइट्स, इक्वल वोट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और हमारा पूरा, मैं मानती हूं कि जो कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा सिविलाइजेशन है, इक्वल पार्टिसिपेशन का है, तो हमें रिजर्वेशन करने की क्या जरूरत है। पर हुआ, हमने रिजर्वेशन नहीं दिया। पर आते 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 हमारा देश पुरुष प्रधान देश कब बना, उसके बारे में चर्चा बहुत हो सकती है, पर ये वो समय नहीं है चर्चा करने का। चर्चा करने का समय ये है कि हम अपनी पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं, और खास करके क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश बनता गया, कहीं ना कहीं महिलाओं को समाज में उनको जो सही दर्जा मिलना चाहिए था, वहां पे भी कमियां आई। महिलाओं को सबसे पहले राजनीति में जाने से ही रोका जाता है। मैं खुद एक बगैर कोई राजनीतिक परिवार से आई हूं, और जब मैंने अपने परिवार में कहा कि मैं राजनीति में सक्रिय होना चाहती हूं, सबने मुझे कहा कि ये तुम कहां पढ़ रही हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब है, सब है, क्यों जाना चाहती हो। तो जब समाज ही आपको डिस्करेज करे, क्योंकि समाज देख रहा है कि हमारे सामने कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो महिलाओं को प्रोत्साहन देती है, या कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जो महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, तो ये सवाल लाजमी है, हर घर में उठना लाजमी है। हम इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? और यहाँ पे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा गया, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया, मैं किसी में यहाँ पे व्यक्ति विशेष नहीं करना चाहूंगी। मैं समाज की जो दिक्कतें हैं और राजनीतिक संगठन, दूसरा स जो आता है, राजनीतिक संगठनों में भी कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी होने से रोका जाता है। आप कोई भी सीनियर बॉडीज देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक संगठन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ही कम होता है। हम एक तरफ सेलिब्रेट करते हैं हमारी देश की, हमने हमारे देश ने पहली महिला प्रधानमंत्री दी, एशिया में नहीं, श्रीलंका के बाद हमने दी। हम ये भी प्राइड लेते हैं कि स्पीकर, हमारी फर्स्ट वुमन स्पीकर हमने किया, हमने राष्ट्रपति हमारे हुए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर साथ ही साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन आंकड़ों में कितना बढ़ा, 70 साल में अगर 14% है, ये कोई गर्व होने की बात नहीं है। और क्यों है ये 14%, मैं ये भी बताती हूँ। क्योंकि कुछ राजनीतिक संगठनों ने, और वो राज्य से आ रहे हैं संगठन, रीजनल संगठन माने जाते हैं, रीजनल पार्टीज मानी जाती हैं, पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर हम टिकट देंगे तो उसमें 33 से 50% भागीदारी महिलाओं को हम देंगे। तब जाकर वो महिलाएं आज हमारा 11% से 14% लोकसभा में भागीदारी दिख रही है, क्योंकि उनको टिकट दी गई। उनपे ये भरोसा जताया गया कि अगर तुम खड़ी होती हो, तुम्हारी राजनीतिक पक्ष तुम्हें पूरी सहयोग देगा और तुम्हें भागीदारी लेने का मौका देगा। आज वो महिलाएं सदन में ही नहीं, संसद में अपनी रोज आवाज उठा रही हैं, उन मुद्दों पे उठा रही हैं जो देश में सिर्फ महिलाओं को लेकर नहीं है, देश में अर्थव्यवस्था को लेकर हो, देश में बाकी गंभीर मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, सारे मुद्दों को वो उठा रही हैं और सक्षम तरीके से उठा रही है। जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी ने कहा कि हमें आंकड़ों पे जाने की जरूरत ही नहीं है दिखाने को कि हम लोग, अगर हमें ये जिम्मेदारी दी जाती है, हम किस, मैं मानती हूँ, सिंसियरिटी से निभाती हैं, किस एम्पैथी से निभाती हैं, किस इंक्लूसिवनेस से निभाती हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, जहां दिल है वहां दिमाग भी है, और ये होना बहुत जरूरी है। और दिस इज वाई इंटरनेशनली भी महिला जो लीडर्स रही हैं कोविड के कार्यकाल में, उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई है कि जहां जहां लीडरशिप रही है और महिलाएं एट द टॉप रही हैं, उन्होंने कोविड को एट द टॉप आने नहीं दिया है। एंड दैट आई थिंक इज द सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ विमेन लीडर्स। तीसरा, संसद और सदन में रिप्रेजेंटेशन। अगर संगठन और समाज हम सबके साथ खड़ा रहेगा, हम सभी के साथ खड़ा रहेगा, तो मैं मानती हूं कि संसद और सदन में अपने आप भागीदारी होगी।
33% रिजर्वेशन की जिम्मेदारी इसलिए आ पड़ी है क्योंकि वो समाज और वो संगठन कहीं ना कहीं महिलाओं को उनको वंचित कर रहे हैं संसद और सदन में भागीदारी लेने को। मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय में अगर हम 73rd और 74th अमेंडमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, मैं उम्मीद करती हूं मेरे कार्यकाल में मैं ऐसा बिल देखूंगी, ऐसा एक्ट लाकर देखेंगे हम सब महिलाएं, और हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगी, जहां पे हम महिलाओं के लिए और रास्ता बनाएंगे। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का भी कभी कभी होता है जब महिलाएं आ जाती हैं, जैसे मैं खुद पार्लियामेंट में आ गई हूं, कहीं ना कहीं हमारा जो कर्तव्य होता है कि दूसरी महिलाओं को ये रास्ता बनाए, हम भूल जाती हैं। 2014 हो या 24 सालों में जब से ये पार्लियामेंट में आया, डिस्कशन के लिए आया, 2014 से मैंने नहीं देखा है कि इस पे महिलाओं ने सामने ये बात रखी हो कि हमें रिजर्वेशन की चर्चा होनी चाहिए और किसी तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। अगर हम महिलाएं भी एकजुट होकर अपनी राजनीति को अलग रखकर अपने जेंडर को लेकर आगे बढ़ेंगी तो मैं मानती हूं कहीं ना कहीं हम सक्षम होंगे। 33% रिजर्वेशन क्यों? 33% रिजर्वेशन इसलिए, और मैं तो कहती हूँ 50%, पर मैं 33 पे ही अभिमान चाहूंगी, 1/3 हिस्सा इसलिए क्योंकि हर जगह, हर क्षेत्र में अगर हम संसद और सदन में महिलाओं को नहीं दिखाएंगे तो बाकी जुडिशरी की अभी रीता जी ने बात की, वो सब अपना पल्ला झाड़ेंगे। वो कहेंगे जब पार्लियामेंट में ही नहीं हो रहा है, जब आपकी राजनीतियों में ही नहीं हो रहा है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप लोग लॉ ले आते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पर आप खुद वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीच करते हैं। सो वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। और जैसे मैंने कहा, विमेन लीडरशिप को लेकर मैंने बात रखी दी है, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, वी विमेन आर ट्रेल ब्लेजर्स। और ये बहुत खुशी की बात है कि जहां जहां महिलाओं को मौका मिला है, वहां वहां महिलाओं ने अपने आप की सक्षमता ही नहीं, अपनी कार्यशैली के माध्यम से उन्होंने देश के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, दुनिया को ही एक नया रास्ता दिखाया है। तो सशक्तिकरण की बात करें, हम महिलाओं की स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें या स्वावलंबन की बात करें, जब तक हम महिलाओं को खुद इन क्षेत्रों में बातचीत करने का मौका नहीं देंगे, तब तक मैं मानती हूं हम देश की आधी आबादी को वंचित रखेंगे। तो इस माध्यम के से मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी महिलाएं जो भी हमसे जुड़ी हैं वो इसको सुनेंगी, अपनी बातों को आगे रखेंगी, अपने अपने सांसद में हो, सदन में हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो, संगठन में हो, समाज में हो, अपना पक्ष मजबूती से रखेंगी और राजनीति से ऊपर रखकर करेंगी। क्योंकि आपकी जो कर्तव्य है पहले आपके जेंडर को है, और जब तक आपका जेंडर सक्षम नहीं है तब तक आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लड़ाई लड़ लें, आप कामयाब तो होंगी पर सही कामयाबी से वंचित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Honorable Member of Parliament Priyanka Chaturvedi ji, for enlightening us with such powerful words. और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि देश की महिलाओं की प्रगति राष्ट्र के विकास का पैमाना होता है, और ये लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें समानता देखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, और जितना समाज ये पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। और जैसा कि प्रियंका जी आपने कहा कि 3 स जरूरी हैं, संगठन, समाज, सदन। तो इन तीनों के साथ हमको मिलकर चलना होगा। और हाँ, आज हम फेमिनिज्म की नहीं, आज हम ह्यूमैनिज्म की बात कर रहे हैं। आज मैं पैनल ओपन करना चाहूंगी फॉर अदर गेस्ट एज वेल। मैं जसकौर मीना जी को इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रियंका जी कहा कि जब आपके पीछे एक बैक सपोर्ट होती है, क्योंकि आपकी नहीं थी, तो स्ट्रगल और बढ़ जाती है। मैं मीना जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो मीना कम्युनिटी से आती हैं और कई सालों बाद वो संसद में फिर से वापसी उन्होंने की है, तो उनका स्ट्रगल कैसा रहा है? और अगर 33% विमेन रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्या वो इस चीज से वाकिफ रखती हैं कि इतने साल पेंडिंग होने के बाद भी क्या वो सपना साकार होता नजर आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरी सीनियर बहनों ने जो पार्लियामेंट में, विधायिका में और अन्य क्षेत्रों में काम करते हुए अपने अनुभव ले रही थी, उस अनुभव का प्रदर्शन जो यहाँ हुआ, मैं ये निश्चित मानती हूँ कि आशा की किरण जागी है। समय बदला है, लेकिन ये बदलता समय ग्रामीण क्षेत्र के वो 80% बहनें
भले ही वो स्थानीय निकाय में काम कर रही हैं, लेकिन जो कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, जो परिस्थितियां उनके सामने मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा रोज का काम है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र की हूँ और ग्रामीण क्षेत्र की उन बहनों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि स्थानीय निकाय में आरक्षण के बावजूद भी उन लोगों की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें कुछ मुश्किल से 10% हमारी सरपंच, प्रधान, प्रमुख बहनें कुछ काम कर पाती हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और संघर्ष के बिना समाज स्थान नहीं देता। और समाज में रचनात्मक, पॉजिटिव काम करने के लिए, सकारात्मक भावनाओं को लेने के लिए आज मैं सोचती हूँ कि हर एक बहन को आशा की किरण रखनी चाहिए। आज महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन केवल एक दिन के लिए हम महिला की शक्ति को जानना चाहते हैं। एक दिन के लिए हम उस महिला को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको प्रोग्रेस देंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे। लेकिन चिंता इस बात की है कि आज चाहे विधायिका हो, चाहे हमारा जुडिशरी का काम हो, चाहे हमारा प्रशासनिक ढांचा हो, इन सब में जिस तरह की परिस्थितियां महिलाओं के सामने हैं, उनको अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये सही बात है कि प्रारंभ में ही आपने कहा कि जब घर के अंदर सम्मान मिलेगा तो बाहर सम्मान मिलना स्वाभाविक है, लेकिन घर में ही महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, जो देखने में अलग है और अंदर अलग है, इस बात को बहुत गहरे से सोचना पड़ेगा। और हम ये सोचते हैं कि हमारी याद करते भी दुख होता है, माननीय सुषमा जी जब हमारे महिला बिल को लेकर बात करती थी या हम महिलाओं से संवाद करती थी, तो उस समय उनकी प्रेरणा रहती थी कि हम सक्षमता से आगे बढ़े। लेकिन उस समय बिल को उनके ही सामने फाड़ा गया। मैं मौजूद थी 13वीं लोकसभा में, और उस समय जब ये बात आई तो यही 8 मार्च था, यही महिला दिवस था। और इसी महिला दिवस पर महिलाओं के प्रति अनेकों छींटाकशी भी की गई। लेकिन ये तो निश्चित है कि आज मोदी का राज है। मोदी जी महिला, पुरुष, गरीब, अमीर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सशक्तिकरण का पर्याय है मोदी जी। ऐसी परिस्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि अब जो बिल आएगा तो निस्संदेह वो पास होगा और हमारे विधायिका में महिलाओं का निर्णय में भागीदारी बराबर की होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत कठिन है। अभी बहन चतुर्वेदी जी ने, बहुगुणा जी ने, संगीता जी ने एक सटीक बातें कही और सही दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने हमको संवाद दिया। लेकिन इस संवाद के साथ साथ एक बात देखनी पड़ेगी कि वो ग्रामीण क्षेत्र की 80% बहनें जो आज भी अपने अधिकारों के लिए तरसती हैं, अपने सम्मान के लिए तरसती हैं। और मैं तो विगत 40 साल से लगातार ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के साथ काम करती हूँ, महिलाओं के साथ काम करती हूँ। किस तरह से घर से उनको उठाकर लाया जाता है, कैसे उनके परिवार को विश्वास दिलाकर हम उनको इकट्ठा करते हैं, यह विश्वास अभी भी दिलाना पड़ता है। पितृसत्तात्मक प्रथा के अंतर्गत जो एक बुराइयां पैदा हो गई हैं, उन बुराइयों में को भी दूर करना पड़ेगा। और ये तभी दूर होंगी जब हम महिला बिल आरक्षण के क्षेत्र में हर क्षेत्र में लाएं। पंचायत राज संस्थाओं में मिल गया, निकायों में मिल गया, लेकिन विधायिका में, लोकसभा, विधानसभा में जब तक ये सक्षमता से लागू नहीं होगा, तब तक मैं सोचती हूँ कि हमारी उन बहनों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये सही बात है कि आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, 2004 में अटल जी जब दुखी हुए थे और उन्होंने एक ही बात कही थी कि कब तक महिला को हम दासी के भ्रमर जाल में पटके रखेंगे, इस भ्रमर जाल से कब तक वो लड़ती रहेगी, उसको कब उठाएंगे, ये बात कहते हुए दुखी भी हुए थे। लेकिन आज हमें विश्वास है कि वर्तमान नेतृत्वकर्ता, उनके जीवन में कोई नामुमकिन काम नहीं है। तो जैसा उन्होंने एक नारा भी दिया है, मैं सदैव उसको लिख के रखती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मुमकिन क्यों है? क्योंकि वो गरीब घर से उठे हैं, बहुत धरातल को उन्होंने देखा है, धरातल पर महिलाओं की दुर्गति को उन्होंने समझा है, और समझने के बाद अब वो निस्संदेह इस विधायिका में हम सबको भागीदारी देंगे, ऐसा विश्वास करते हुए मैं आप लोगों ने जो आज ये सेमिनार, जो ये व्यवस्था की है, मैं स्पीकर, हमारे लोकसभा के स्पीकर, उनको थैंक्स देना चाहूंगी कि बहनों के संवाद को
खुले मंच पर रखकर और सबके साथ जोड़ते हुए इस महिला दिवस का सम्मान किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जसकौर मीना मैम। सच में आपने जिस तरीके से बताया कि महिलाएं जैसे सशक्त होकर आगे आ रही हैं, वो अपने आप में गर्व की बात है। और जब महिलाओं को मिलेगा सम्मान, जब नारी की होगी पहचान, जब बेटी का आना होगा पर्व, तभी तो होगा हमें अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी संगिनी पर, अपनी मां पर गर्व। तो चलिए इस दिन को गर्व के साथ मनाते हैं, हर दिन को गर्व के साथ मनाते हैं, क्योंकि हर दिन नारी के नाम। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर सीमा कौल जी से, डायरेक्टर प्राइड, कि वो अपनी कुछ बात रखें और वो मैम से कुछ पूछना चाहे आज के दिन पर तो जरूर कुछ कहें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आज सुबह से जो चर्चा चल रही है उसमें जो दिल और दिमाग की बात हुई है, तो मुझे लगा है हमारे पैनलिस्ट ने वो दोनों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बात जो भी कही गई है वो दिल तक छुई है। सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बहुत बार आप लोगों को हमने सुना है, लेकिन इस तरह से इस टॉपिक पर बहुत मुझे खुशी हुई। बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने हमें दिए हैं और हो सकता है इससे हम थोड़ा सा प्रेरणा लेके और आगे हम इस तरह की कोई और डिस्कशंस भी आगे करवाएं। बस एक सवाल मैं आपसे अपने दिल से यही पूछना चाहूंगी कि आप आज महिला दिवस पे कितना गौरवान्वित फील कर रही हैं, लाइक द अचीवमेंट्स यू हैव। तो आपको आज पर्टिकुलरली कुछ ऐसा गर्व का अनुभव हुआ है? What do you want to answer that? गर्व तो मैं मानती हूँ कि हमें हर दिन होना चाहिए, सिर्फ एक ही दिन पे नहीं सीमित रखना चाहिए। और गर्व इस बात का होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हम सारी महिलाएं जो हैं और जो अपने अपने समाज से लड़कर, अपनी परिवारों से कभी कभी लड़कर यहाँ तक पहुंची हैं, अपना मुकाम बनाया है और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बनाया है, उस बात का हमें गर्व होना चाहिए। हर बार महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है सामाजिक तौर से। सोशल मीडिया भी एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां पे महिलाओं को लेकर उलझुल बयानबाजी होती है, काफी टीका टिप्पणी होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होते हैं। पर मुझे इस बात का हर दिन गर्व होता है जब मैं अपनी बिटिया को देखती हूँ, जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ। बेटा एक सक्षम माँ को देखता है, बिटिया एक स्वावलंबी माँ को देखती है। और यह मैं मानती हूं कि हम हर महिलाओं को अगर हम किसी तरीके से एक एक्शन प्लान दिखा सकें, एक दृढ़ निश्चय दिखा सकें कि हाँ, अगर हमने कुछ मन में बनाया है हम उसको पूरा कर कर रहेंगे, तो मैं मानती हूं कि हमारे लिए वो ही सक्सेसफुल दिन होगा। तो हाँ, मुझे हर दिन के लिए गर्व होता है और आज खास करके होता है क्योंकि आज संसद में हमें माननीय सभापति ने बोलने का भी मौका दिया विदाउट एनी रीजन, बट बिकॉज इट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो कहीं भी हमें अपनी बात रखने का मौका मिले तो वो तो स्वागत योग्य है। थैंक यू सो मच। Now I would like to thank everybody for this such empowering session. Absolutely, Priyanka ji, every day should be considered as Women's Day. I thank you, Sangeeta ji. I thank you, Priyanka ji. I thank you, Jaskor ji, for joining in for such a enlightening session. नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारी ने रचा विधान है, हमारा उनको नतमस्तक है, इन्हें हमारा प्रणाम है। Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now we'll join for the tea time, and after that at 12 we'll join for the another session on social media. Thank you so much. Thank you very much and a very happy Women's Day once again. Thank you. कर देते हैं ठीक, एक ग्रुप फोटो होनी चाहिए ना। हाँ
नमस्कार सभी को। पहले तो बहुत बहुत महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहता है हर एक स्पेशल डे के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मी महिला का दिवस हर दिन होता है, सुबह होते बराबर शाम तक। हमारे बिना या महिलाओं के बिना एक भी क्षण, या फैमिली में हो या काम में हो या कोई भी फील्ड में हो, हमारे बिना वो पूर्ण नहीं होता है। तो मुझे लगता है फीमेल वी आर वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा मजबूत हैं हम फीमेल्स लोग, पर कहीं ना कहीं हम डोमिनेशन से बहुत डर जाते हैं। I think we are living into that world that we are dominated, we are surrounded by men who dominates us in every second. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी डोमिनेशन से सराउंडेड वीमेंस रहती हैं। तो हमारी जो पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, उसे भी कहीं ना कहीं हम कमजोर कर लेते हैं कि अरे आई डोंट थिंक मैं इनके सामने ये कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि हम विमेन्स को ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। अब वो क्षण नहीं रहा कि महिला ने एजुकेट होना चाहिए या महिला आगे आनी चाहिए। महिला आगे आ चुकी है, पर एक कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं हम लैकिंग करते हैं अपनी लाइफ में, करके हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों से ज्यादा मेहनत करके ये दिखाना पड़ता है कि आई एम मोर टैलेंटेड कंपेयर टू मेन। तो मुझे आप ये चांस दीजिए। बिल्कुल, हमेशा से हम लोगों को ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है, मेहनत पुरुषों से ज्यादा करनी पड़ती है अपना टैलेंट रियल बाहर ला के दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है, और हम कर भी रहे हैं, जहां महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट से चेहरा नहीं दिखाती थी, आज हम फाइटर बन गए हैं। If you see air forces, if you see a pilot, if you see a lecturer, if you see an advocate, if you see doctors, if you see a cop, if you see a constable, if you see a PI, IS officers, we are there in every field. Absolutely. But still we are behind. Yes. And आज भी हमारे 33% जो आरक्षण जो लोकसभा में अभी भी प्रलंबित है, जो अभी भी वो पास होने के लिए कहीं ना कहीं रुका है। और हमने वहाँ यही बात कही थी कि नारी ही है जीवन का आधार, नारी से ही है संसार, नारी है 50% बराबरी की हकदार। फिर क्यों आज तक लंबित है संसद में 33% आरक्षण की दरकार। वेरी ट्रू। तो यहीं से शुरुआत करते हैं मैम। हर दिन जब नारी के नाम, तो क्यों सिर्फ एक दिन मनाना है, हर रोज महिलाओं का दिन है। जी हाँ, ये नया जमाना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं दीक्षा कोहली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। Very good afternoon to everyone and everyone present here. A warm greeting on International Women's Day to everybody. Women strengthen the foundations of this great nation. There can be no hero without her. Today, women from all the fields are making our nation proud. With her abilities as grand as Mother Earth, she plays a vital role in social transformation. We must salute and respect every woman in our life and society. We exist because of her. Our roots are connected to her, which we can never forget. The women of India who through courage and hard work have shaped and nurtured our society and have played an extraordinary role in building a new India. She is a believer, she is a doer, she is an achiever, she is a woman, she is you. Yes, she is you, she is we, Thank you. she is everywhere. Thank you. A very happy day every day to you. I just want to tell you one more thing. I don't know how many families or parents will agree with it, but I know the ground level. कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं एक क्षण में एक चीज रह जाती है. I'm going to speak on this in the parliament today about Women's Day, especially on this subject. कि I am an unwanted girl baby in my family. That I knew. That my parents told me, my grandmom told me, कि you are unwanted a kid because first kid is always welcome, whether it is a girl, whether it is a boy. Everybody becomes so happy in a family, and I'm a second child in my family, and I have an elder sister in my family, and I'm the second girl child in my family. So that time, it was one thing कि my parents were like, पहली बेटी हो गई है, फिर कहीं बेटी हो गई तो हमने क्या करना है? What will happen next? कैसे दो लड़कियों को हम संभालेंगे? How it will be manageable for us to handle second girl baby? So they went to the hospital कि हमें बच्चा ही नहीं चाहिए दूसरा.
वो क्या होगा उसकी बात की चर्चा है, पर अगर लड़की हो गई तो हम कैसे करेंगे. My grandmother was there with my mom. They went to the hospital. They took a date कि when we have to come for the miscarriage or abortion, we have to do it for a girl, for this baby. They got a date. They went on that day, but doctor had an accident, so doctor could not come to that day to the hospital. And I am there with in front of you because that happened. So it is actually for me something very unexpected when my mother, I spoke to my father that this issue I'm going to raise in the parliament. That this kind of families are still there, whether they are educated, whether they are non-educated, whether they belong to a city, whether they don't belong to a city, this mentality is still there in our India. So I just request all the parents कि लड़कियां बोझ नहीं होती हैं. I make my parents proud. I make my in-laws proud about this. I make my kids proud about their mom. So I make my sister, brother proud on me. तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अनएक्सपेक्टेडली गर्ल बेबी जन्म लेके आई है. तो मुझे लगता है हर किसी का जन्म लेना और ये सुंदर जहां देखना और अपने आप को नाम अपने आप का नाम इस जहां में रोशन करना, मुझे लगता है सभी को अधिकार है. या फिर वो गर्ल हो या बॉय हो, जीने का अधिकार सबको देना चाहिए. इतनी मैं विनती सभी पेरेंट्स से करूंगी, क्योंकि बराबरी हक हम मांग रहे हैं पर जन्म ही नहीं होगा तो बराबरी अधिकार कहाँ से हम मांगेंगे. तो मुझे लगता है बराबर अधिकार देने के लिए जन्म देना बहुत जरूरी है. एंड आई जस्ट टेल ऑल द विमेन्स कि एक आखिरी की चीज, विमेन की शक्ति बननी चाहिए, ना कि कमजोरी बननी चाहिए. हम महिलाओं दूसरी महिलाओं को देख के अपने चेहरे पे स्माइल आना चाहिए, वो है महिला शक्ति. तो मुझे लगता है आई सी एवरी वुमन विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन माई फेस दैट शी इज माई सिस्टर, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई कलीग, शी इज माई मॉम, शी इज माई सिस्टर. सो मुझे लगता है महिलाओं ने दूसरी महिलाओं पे बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए. पुरुषों से डोमिनेट होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं, पर महिलाओं से डोमिनेशन बर्दाश्त शायद महिलाओं को होगा. तो मुझे लगता है आप सभी को महिला दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. थैंक यू. Great, Navneet ji. I think the feelings are mutual, though this was not my part of any kind of a script, but I would like to say that I was also an unwanted child. I was also a second child. And when I was born as a second child, my relatives came to the hospital and said, "Ki, this is your second girl child, go, we will adopt it because we are not having babies." So my mother said, "No, they are my two girls and I'm very proud of them." And now when my father just passed away 3 months back, we as two sisters, we don't have a brother. We did our last rites of our father. So we are very proud. And शक्ति ना भगवान ने हमें जन्म से ही दे देता है. So हम में कोई शक्ति कोई डालता नहीं है. I think it's just God given. So I really welcome you and you are a great inspiration for all of us. This is our second part of the session. बिल्कुल दूसरा सेशन है. सत्र के बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन क्योंकि मामला बहुत इमोशनल हो गया है तो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ. जहाँ ये पहली बार मैंने नहीं सुना कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, बहुत बार इससे पहले सुना, तो न जाने कहां से अनायास मन में पंक्तियां आ जाती हैं. आज फिर वही पंक्ति याद आ गई कि ये सोच गलत है कि बेटा होगा तो ही वंश चलाओगे. ये सोच बहुत गलत है कि अगर बेटा होगा तो ही वंश चलाओगे. अरे अगर बेटियां ही ना रही तो बहू कहां से लाओगे. तो बहुत जरूरी है कि हम बेटियों के आने पर पर्व मनाएं और बेटियों को अपना गर्व बनाएं. तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने दूसरे सत्र की. और द टॉपिक ऑफ द सेकंड सेशन इज सोशल मीडिया, डज इट वॉलेट द प्राइवेसी ऑफ वुमेन. Interaction in public sphere always requires a high degree of care and integrity compared with interpersonal communication. With the advent of information technology, public visibility of personal communication and expression of ideas and emotions happen in rapid pace. Social media platforms are the modern day guarantor of freedom of speech and expression. On the other hand comes the privacy issues related to social media. The cybercrime and other crimes related to infringement of privacy are on the steep rise. In this session, we would discuss whether the current on the privacy issue are enough or do we need more stringent laws. We would like the esteemed panelists to share their stories as well.
To participate in this session, we have with us Honorable Member of Parliament from Lok Sabha, Navneet Ravi Rana. We have Rachri Rai ji, who is the MD and Editor-in-Chief of APN News, Our India Legal. Thank you so much, both of you, for joining into this session. Now we would like to ask you who is going to start first. Actually, she has to leave for HS program. So, ma'am, just few lines on social media, and then I think. We have encouraged social media to the another level now. We've got people who does anything on social media, they're making it viral, they are going viral, their talent or anything. So it has to be there कि you make yourself restrict कि what I have to be there on social media, how much time, because nowadays what happening with the ladies, they're leaving every work, they're there on the social media, whether it is in Instagram, they are there on the Facebook, they are not seeing, they are not looking at their kids, but they're there on the Facebook or they are there on the Insta. तो मुझे लगता है Instagram, Facebook, any social media, WhatsApp, if you are there, we should make a limitation on that. कोई भी चीज लिमिट के बाहर जाती है तो इसका कुछ अलग ही चेहरा अपने सामने आता है. और आज जो हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि हमारे नाम पे कोई अलग फेसबुक अकाउंट बना रहा है, इंस्टा पे बना रहा है, फेस कट करके कुछ कर रहा है, तो ये सब चीजें नेगेटिविटी होंगी. अगर हमारा टैलेंट भी अच्छा रहा, मुझे लगता है अच्छी चीजें उससे बोरो करनी जरूरत है. अगर पूरे टाइम ही आप सोशल मीडिया में रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, उसमें नो डाउट्स. तो उसमें कई नियम कायदे आने चाहिए क्योंकि नई नई चीजें हमारे देश में आ रही है, तो उसे एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना, क्योंकि कोई भी उस पर एक्सपर्ट नहीं है. एक्सपर्ट के लिए उतना समय जरूर लगेगा. तो जितने भी लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मुझे लगता है थोड़ा टाइम घर में भी दिया जाए, बच्चों को भी दिया जाए और आगे अपने भविष्य के लिए भी दिया जाए. सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट देन योर करियर. तो मुझे लगता है भविष्य के लिए काम करना बहुत जरूरी है सोशल मीडिया से ज्यादा. थैंक यू. Can I leave? Rachri ji, do you connect with this that social media is not everything and it is above the career? बिल्कुल. आप लोग तो आवाज है ना, तो थैंक यू. जरूर कहना चाहूंगी कि वैसे तो आप करती हैं टीवी पर देश की बात, लेकिन क्योंकि आज आपसे हुई है ऐसे वक्त में मुलाकात कि आज हम करेंगे महिलाओं के मुद्दों पर बात. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन कर सकता है. बिल्कुल. और मैं समझती हूँ कि देश की बात तो तब तक हो ही नहीं सकती जब तक महिलाओं की बात ना हो. बिल्कुल. और बड़ा मशहूर शेर है कि शहर का तब्दील होना, उदास होना, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं. तो इसमें कोई शक नहीं कि हम ही वो 50% आधी दुनिया हैं जो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठाती हैं. अब इस आधी दुनिया की जो भूमिका रही है, जो आज तक हमने किया है, जो कुछ हमने पाया है, वो सब कुछ तो तमाम जगहों पे हम आंकड़ों में देखते आए हैं. क्या कमियां रही हैं, क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, सबकी अपनी अपनी जिंदगी की सच्चाइयां हैं. जैसे यहाँ पर नवनीत जी ने कहा कि वो अनवांटेड चाइल्ड थी, हमारी सहयोगी ने कहा कि वो भी अनवांटेड चाइल्ड थी. लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि आज से लगभग 40 साल पहले, जबकि समाज बड़ा ही बिल्कुल संकुचित था, आज से भी कहीं ज्यादा, हम सभी जानते हैं. और इस बहाने में अपनी उम्र का भी खुलासा कर रही हूँ. तो और खासकर मैं जिस जगह से हूँ, बिहार के एक बहुत पिछड़े गांव से, मैं बड़ी वांटेड चाइल्ड थी. मेरे 5 भाई हैं और मैं अकेली बेटी हुई अपने खानदान में. और मेरे माता पिता ने इंतजार किया, उन्हें एक बेटी चाहिए थी. और अगर हम वैदिक रूप से भी देखें तो ये कहा जाता है कि उस पुरुष का, उस व्यक्ति का जीवन इस धरती पर सफल नहीं हो सकता, उसे सो कॉल्ड स्वर्ग नहीं मिल सकता जब तक वो कन्यादान न करते. अब कन्यादान की परिभाषाएं अलग हुई, वो अलग एक बहस है, उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल जो आज का विषय है वो है सोशल मीडिया. क्या महिलाओं के निजता में कहीं कोई दखल दे रही है.
मुझे लग रहा है कि, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हम सभी लोग हैं, हम सभी सोशल मीडिया पर हैं और मीडिया के महत्व को समझते हैं, मीडिया के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा आसमान दे दिया जहाँ हम बेपरवाह होकर उड़ रही हैं। मीडिया इसके पहले थी, टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें बड़ी ही महिलाओं का जो हर एक महिला नहीं आ सकती थी। सोशल मीडिया में आज आप देखें तो वो महिलाएं जिन्होंने शायद कभी भी अपने को कैमरे के सामने भी लाने में झिझकती होंगी और शायद उनके घर में कैमरा भी ढंग से कभी कभी जाती होंगी स्टूडियो फोटो खिंचवाने, आज वो किचन में खाना बनाती हैं और वो वीडियो भी अपलोड करती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो मैंने देखा, एक नन्ही सी बच्ची खेत के मेड़ पर, मजदूर की एक बेटी है और वो उसने बड़ी ही खूबसूरत डांस किया एक फिल्मी गाने पर और वो बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। कहने का मतलब कि एक ऐसा आसमान आपको मिला है जहां आप स्वच्छंद होकर उड़ रही हैं और ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो ये वरदान भी है। लेकिन जैसा कि हम महिलाओं के साथ होता आया है कि जब जब ऋषियों ने हमें वरदान दिया है तभी दुर्वासा आए हैं और शकुंतला को श्राप देकर चले गए हैं। ठीक वैसे ही एक बार फिर से ये जो सोशल मीडिया का पूरा आसमान है, इसके पीछे काले बादल भी हैं। इसका हम सभी शायद हम सभी में से कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा होगा जो, और शायद सभी ऐसी होंगी जो कभी ना कभी एक तरह से सोशल मीडिया पर अब्यूज का शिकार हुई हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जाति, धर्म, वर्ग से इतर हम सभी कभी न कभी कोई ना कोई ऐसा कमेंट आता है जो हम नहीं चाहती कि वो मिले और हम उसको धीरे से ब्लॉक कर देती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो या तमाम अन्य मंच पे। तो ये अब्यूज तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये अब ऐसे हम राक्षसों से लड़ रहे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। समाज में अगर हम रास्ते में चल रही हैं और हमारे ऊपर कोई कमेंट करता है तो शायद हम उनको देख लेती हैं और हमारे पास हिम्मत होती है, हालांकि ये हिम्मत भी जुटानी बड़ी मुश्किल होती आई है अभी तक, कि हम जाएं और पुलिस में रिपोर्ट कराएं। फिर भी बड़े शहरों में हम करा लेती हैं, लेकिन छोटे शहरों में तो अभी भी वो भी हमें झेलना है और साथ में अदृश्य ताकतों से भी लड़ते रहना है। जैसा कि नवनीत जी ने कहा कि अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, मैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल आवाज बुलंद रखनी चाहिए, लब आजाद रखने चाहिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो काम करती हैं, वो अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देती। हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, सबके, समाज के प्रति। लेकिन जो कानून है जिस तरह के, जैसा कि अभी सरकार ने 25 फरवरी को आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक नया अध्यादेश, एक एक्ट भी पास किया है, वो सारे कानून धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया पर लगाम तो नहीं लेकिन उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसके साथ दो डर, मैंने हाल फिलहाल में बहस में एक मेरे साथ बड़ा वरिष्ठ पैनल थे, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एडवोकेट्स थे, हम सभी ने इस बात पर बहस की कि भाई आप लगाम लगा देंगे तो वो राइट टू एक्सप्रेशन का क्या होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा, मोरल पोलिसिंग तो हम नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल हैं अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक जो सोशल मीडिया हमारे सामने आया है उसके लिए, उसके उपयोग के लिए हम थोड़े बच्चे हैं और अभी हम एक जादुई दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हमें सब कुछ पसंद आ रहा है। हम रात में जाते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं और ओटीटी पे जाते हैं और तरह तरह के हमें तमाशे देखने को मिलते हैं। कभी हम किसी को ढूंढ रहे हैं, कभी किसी से बातचीत कर रहे हैं। उस आज़ादी का जो स्वाद है वो अभी हम चख रहे हैं और अभी हम मदमस्त हो रहे हैं। इस मदमस्ती के बाद अब होश में आने की जरूरत पड़ेगी और उस होश में आने के लिए बड़ा जरूरी है कि चाहे हम हो, आप हो, कानून हो, समाज है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारे नेता हैं, ये सभी लोग मिलकर एक ऐसे माहौल को बनाएं जिसमें इस बात के लिए तो तय कर दिया जाए कि यदि महिलाओं के साथ, उनकी निजता के साथ, उनके सम्मान के साथ कहीं कोई भी समझौता यदि हो रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी,
चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका कितना बड़ी भी कंपनी हो, चाहे उसका कोई भी बिजनेस हो। अगर हम इस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म, कोई इतना बड़ा बाजार, भारत के बाजार को कोई छोड़ के जाना चाहेगा। और बस थोड़ी सख्ती की जरूरत है, और वो सख्ती हमारे अंदर भी आनी चाहिए, वो दृढ़ता हमारे अंदर भी आनी चाहिए, हमारी सरकारों के अंदर भी आनी चाहिए, हमारा जो पूरे व्यवस्था है उसके अंदर आनी चाहिए। यदि वो हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया जो अभी कभी वरदान कभी श्राप लगता है, वो बदल जाएगा, वो सूरत बदल जाएगी। बस थोड़ी संकल्प की जरूरत है। जी, सही में आपने बहुत अच्छी बात कही मैम कि एक संकल्प की जरूरत है। अगर एक संकल्प दृढ़ होगा तो बहुत कुछ बदलेगा। बहुत जरूरत है कि आज अगर हमारे साथ हमारे अधिकारों का हनन होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमें आवाज उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक नारी नहीं बोलेगी वो अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन आज का जो बदला जमाना है उसमें नारी ने बोलना भी शुरू किया है। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी है और वो जानती है कि वो अपने अधिकारों को कैसे पा सकती है। आते हैं और सोशल मीडिया पर हालांकि बात चल रही है, और मैं टेलीविजन मीडिया से हूं, और ये कह के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम मीडिया में अभी भी उतनी संवेदनशील नहीं हो पाए हैं महिलाओं के प्रति, जितना कि हमें उम्मीद थी कि हम संवेदनशील होंगे। और शायद इसी वजह से आज भी हम महिलाएं भी जब आप एड्स देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सबों में से कभी किसी ने, शायद मैंने तो उठाई भी है और बहुत और लोगों ने उठाई, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे, पुरुषों में तो खासकर मैं कहूंगी, आप देखेंगे शेविंग किट का ऐड होता है, उसमें महिलाएं होती हैं, उसमें महिलाओं का होना बड़ा जरूरी होता है। चाहे वो पुरुषों का कोई भी ऐड होगा, उसमें महिलाओं का होना जरूरी होगा। तो यानी महिलाओं को जो कमोडिटी हम बना के बैठे हुए हैं, और हमें भी मजा आता है, हम ये कहते हैं कि महिलाओं को दिखाओ, बड़ा बिकेगी चीज। और तो ये जो मजा लेने की आदत है, और हम सारे एड्स हमारे सामने से गुजर जाती हैं कि फेयर एंड लवली दिखा रहे हैं और गोरे हो जाएंगे, और हम बड़े आसानी से उस एड को बचपन से देखती आई हैं, और वो एड देख के जाकर फेयर एंड लवली खरीदती आई हैं। कभी हमने इस बात की आवाज नहीं उठाई कि नहीं, नो मोर, हमें अब ये इस तरह के एड्स नहीं चाहिए। उसी तरह से आप सोशल मीडिया पर भी देखें, हम नेटफ्लिक्स रोज देखती हैं, और तमाम हमारे यहाँ जो सारे आपने हिट शोज देखे होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लगातार महिलाओं को गाली मिल रही है। हम ये कहते हैं कि रियलिस्टिक एक्ट है, ये बिल्कुल वास्तविक अभिनय है, और इसलिए उसको हम हिट कर रहे हैं। वो हम भी तो हैं जो देख रही हैं। हम क्यों नहीं कहती कि इनको ब्लॉक किया जाए, क्यों नहीं हम कहते, कभी मुझे नहीं लगता कि जितनी डिमांड आरक्षण के लिए, इन तमाम चीजों के लिए हुई है, महिलाओं ने एक पूरी मुहिम बनाई हो और ये लिखा हो कि नहीं, हमें इस तरह का कंटेंट नहीं चाहिए। हम भी जाकर फिल्म हॉल्स में बैठती हैं, इस तरह की चीजें भी देखती हैं, सीटियां बजती हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं। हम आइटम सॉन्ग्स हम खुद सुनते हैं, और फेविकॉल और ये सब चीजें हम खुद इसको अप्रिशिएट करती हैं। हमारी बच्ची उस पर डांस करती है, और हम इसको नहीं रोकते कि नहीं बेटा, ये चीज हमारे लिए नहीं है, ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। और अब चूंकि हमें एक सोशल मीडिया ने एक ऐसी आजादी दी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं। आप जब, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, आप रिपोर्ट कर सकती हैं, लिख सकती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो मुहिम है, ये मुहिम कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई कानून नहीं बन जाएगा और कल से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि विमेंस डे की सफलता तब शायद होगी जब हम इस बात को ठान लें कि कल से ही यदि मुझे कहीं भी कोई भी ऐसा कंटेंट दिखता है जो मेरे हिसाब से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ होगा, मैं उसको फ्लैग करूंगी, मैं उसको नेगेटिव मार्किंग दूंगी, मैं जरूर लिखूंगी कि इस तरह के कंटेंट को आप बंद करें। और शायद तब जाके हम उस स्थिति को पा सकेंगे जहां पर महिलाओं की निजता, मेरी निजता नहीं होनी चाहिए, किसी भी महिला की निजता होनी चाहिए, वो मेरी ही निजता होनी चाहिए। जब ये हम समझ लेंगे, तब शायद मुझे लग रहा है कि हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि जहां पर हमें
इस बहस को नहीं उठाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कर क्या रहा है। इसे समझने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया बिल्कुल आपकी निजता में घुस गया है। आप जब बेड में होती हैं तब भी वो आपको पिंग कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके प्राइवेसी में, आपके बिल्कुल इंटीमेट चीजों में घुस चुका है। अब इसको आपको अगर एक दूरी पर रखना है, इसको वरदान बना कर रखना है, तो मुझे लगता है कि एक बार जैसे मैंने शायरी से शेर से शुरू किया, मजाज की एक और शेर है बड़ा मशहूर, उससे खत्म करूंगी कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जरूरी है कि इसको परचम बना लें और उस परचम को लहरा लें और दूसरे महिला के सम्मान को भी अपना सम्मान समझ लें। तो कोई लोकसभा, कोई पार्लियामेंट्री की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो आंदोलन है जो हमसे, आपसे, हमारे अपने बच्चों से शुरू होती है। Very well said, Rajshri Rai ji. Thank you so much for such powerful, enlightening words. We are so thankful that you came in and you spoke on this very important topic that is booming, because the moment social media word comes, there is such proliferation of all social media platforms that comes into our mind. As you rightly said कि social media एक खुला आसमान तो है, लेकिन उस खुले आसमान के पीछे काले बादल भी हैं, उनको भी समझना होगा। अगर बदलाव लाना है तो बदलाव किसी लॉ से नहीं लाया जा सकता, हालांकि लॉ जरूरी है, लेकिन बदलाव सबसे पहले अपने से लाना होगा, अपने घर से लाना होगा। जो वैल्यूज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो इन्वायरमेंट हम अपना आसपास बना रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग द वुमेन first of all, and whenever there is any objectification, we raise the flag, as you rightly put in. Thank you so much, Seema Kaulji, for organizing this important topic, and surely the words from Navneet Rana ji and Rajshri Rai ji will definitely bring change in our society. Thank you so much. जिसको कहा जाए बड़े ही नाजुक और बड़े ही संवेदनशील ये सारे विषय हैं, उसको आपने इतने तरीके से रखा और अपने जो पर्सनल जो अनुभव है वो साझा किया। आपका अनुभव, हम सबका अनुभव एक जैसा ही, और खासकर सीमा जी की इस कोशिश के लिए बहुत बहुत सलाम सीमा जी आपको। और जिस तरह से आपने ये सब्जेक्ट उठाया है, ये वाकई आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोग इससे पीड़ित हैं और इसका लाभ भी उठाना चाहती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। कार्यक्रम का समापन करेंगे कुछ एक पंक्तियों के साथ। एक स्वच्छंद आसमान में उड़ती है तू, बनाती है अपनी एक पहचान। ममता का आईना भी तू ही देश की शान। हाँ, नारी है तू, नारी है तू अबला नहीं, दुनिया पर भारी है तू। तुझे ही वंदन, तुझे प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और एक बार पुनः हम यही कहेंगे, सिर्फ आज का दिन नहीं, हर दिन महिलाओं के नाम। प्रणाम। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पार्लियामेंट एनेक्स में उन्होंने लंच का आयोजन करवाया है, सो सभी महिला पत्रकारों से अनुरोध है कि वो वहां पहुंचे।